Morning students, welcome to today's video lecture. We have finished the chapter sequence and series. So today we will be starting off with a relatively easier chapter, which is chapter number 12, Introduction to 3D Geometry. Chapter number 12, Introduction to 3D Geometry. 3-dimensional geometry बहुत ही easy chapter है. तो दो important chapters मतलब बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस एंड सीरीज करने के बाद ये चैप्टर हम करेंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी होगा और इजीली खत्म हो जाएगा. पहले मैं आपको सिखाता हूँ वन डायमेंशन उसको 1D भी बोलते हैं या हम उसको सोच सकते हैं एक नंबर लाइन, लाइन. ओके, लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट. कितने रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट. सो कैन आई से देयर इज 1-to-1 correspondence. There is 1-1 correspondence. There is 1-1 correspondence between. There is 1-1 correspondence between points on a line. Between points on a line and real numbers Each point on a line represents a unique real number. Each point on a line. Infinite points on a line, infinite real numbers. So there is 1-1 correspondence between the infinite point on a line and infinite real numbers. Each point on a line represents, you can say, represents a unique point. Sorry, each point on a line corresponds to a unique real number. You can say represents a unique. Each point on a line represents a unique real number. Represents a unique real number. Suppose मैं एक लाइन कंसीडर करता हूँ, ये लाइन है. Okay, so infinite points are there and there are infinite points on the line. There are infinite points on the line and there are infinite real numbers. Suppose point is A and दूसरा point is B. Suppose point A corresponds, point A represents real number छोटा a and point B represents real number छोटा b. Let points A and B, let points A and B represent, let points A and B represent real numbers छोटा a and छोटा b respectively. तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? Then we can write A of A. Then the 2 points on the number line, the 2 points of the R1, हम क्या बोलेंगे? ये हो गया points on R1, या ये points हो गए points on one dimension. Therefore वो points हो जाएंगे A, A. A represents point A represents real number A and point B represents real number B. So A of A, B of B are 2 points of R1 are 2 points of one dimension are 2 points of R1 मतलब one dimension और 1D. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन A और B है, डिस्टेंस बिटवीन A और B है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला इन R1 का पता था. डिस्टेंस फॉर्मूला इन वन डायमेंशन मतलब R1 और उसको वन डायमेंशन मतलब 1D बोलते हैं जो एक लाइन है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला इन R1 हम क्या करेंगे? लेट A of A B means point A represents real number B, point B represents real number B. B2 points of R1. So distance between A and B उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे B of AB या is equal to AB. और वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Distance between the 2 points A and B. Therefore, distance between the points A and B is distance AB, which is modulus of A किसको रिप्रेजेंट करता है? छोटे a को. और B किसको रिप्रेजेंट करता है? छोटे b को. So modulus of A minus B. ये हो गया. This is distance formula in R1. One is distance formula in R1. What is distance formula in R1 और one dimension? दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हम लेते हैं, ये नंबर लाइन है. नंबर लाइन पे O सपोज रिप्रेजेंट करता है 0 को,
point P represents छोटा रियल नंबर P and point Q represents छोटा रियल नंबर Q. Let O be the point. Let point O represent 0 on the number line. फिर हम लिखेंगे कि point P represent छोटा p and point Q represent छोटा q on the number line. Here, okay. Here points P and Q represent real numbers, छोटा p and छोटा q respectively on number line. तो उस लॉजिक से वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे और R1 या वन डायमेंशन है P of P या point Q represent छोटा रियल नंबर छोटा q are points of R1 are points of one dimension which is R1. Here O represents 0 on number line. Here O represents O and we have point O representing 0 on the number line. Okay, and we have point O representing 0 on the number line. Okay. Now what I want to say is that point P is on the right side. Here point P is on the right side. Point P is on the right side of the point O. Point P is on right side of point O. उस लॉजिक से इसका मतलब ये जो छोटा p है will be positive because it is on the right side of 0. Therefore real number p is greater than 0. So that is p is positive. Real number. फिर दूसरा point Q is on the left. Point Q is on left of point O. Is on left of point O on the number line. उस लॉजिक से Q क्या हो जाएगा? Q lies on the left of 0. तो उसका मतलब therefore जो Q है वो less than 0 होगा. That is Q is negative. Q is negative. Positive real number and Q is negative real number. That is Q is negative real number. I hope I'm clear. इतना आपको समझ में आया? ओके, और सारे पॉइंट्स ऑन R1 हम कैसे लिख सकते हैं? सारे पॉइंट्स ऑन R1 मतलब पॉइंट्स ऑन R1 क्या है? ओके, सो R1 वन डायमेंशन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो एक लाइन होगी. लाइन में कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स. और कितने रियल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट. सपोज पॉइंट P है, मैं जनरलाइज कर देता हूं, और इट रिप्रेजेंट्स x. So what I can say is that R1 is equal to one dimension. Suppose point P represents real number x on number line. So therefore जो R1 है या वन डायमेंशन है, it is set of all the points P which correspond या which represent real number x where x is a real number. ये हो गया हमारा R1. और इसमें क्या लॉजिक लिखने का कि there are infinite points on the line and there are infinite real numbers. Each real number is represented by a unique point and each point represents a unique real number. There is one correspondence between infinite points on the line and infinite real numbers. Simple. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला R1 हो गया. डिस्टेंस फॉर्मूला R1 क्या होता है वो मैंने समझा दिया. अब हम करेंगे टू डायमेंशन. और टू डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं? XY प्लेन या R2. टू डायमेंशन या XY प्लेन, आई विल राइट XY प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं? 2D या R2 या इन XY प्लेन. In XY plane there are two mutually perpendicular lines. There are two
mutually perpendicular lines, namely x-axis and y-axis, namely x-axis and y-axis. और ये x-axis और y-axis कहाँ पे मिलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं origin. And x-axis and y-axis, x-axis and y-axis meet at origin, meet at origin. और आपको याद रखने का कि any point in xy plane, any point in R1 या any point in one dimension is p of x. वन डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रियल नंबर चाहिए. xy प्लेन टू डायमेंशन में R2 में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए. एनी पॉइंट इन, आपको याद रखना पड़ेगा, एनी पॉइंट इन xy प्लेन और 2D टू डायमेंशन को बोलते हैं और R2 is given by p of xy. Means two real numbers are needed to represent any point in R2 or two dimension. What is R2? R2 is two dimension. Two dimension is xy plane. In xy plane there are two mutually perpendicular lines, namely x-axis and y-axis. x-axis और y-axis को क्या बोलते हैं? x-axis और y-axis को क्या बोलते हैं? x-axis and y-axis meet at origin. Any point in xy plane is given by p of xy. X-axis is a horizontal line. X-axis is horizontal line and y-axis is vertical. ये भी आपको पता है, is vertical. ठीक है? अब पहले हमको ड्रॉ करते हैं x-axis और y-axis और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे. आपको ऑलरेडी एक नॉलेज है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ज्यादा उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे. ओके, xy प्लेन के अंदर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. वन इज वर्टिकल which is y-axis and one is horizontal which is x-axis. X-axis and y-axis meet at a point origin O. और x-axis को हम रिप्रेजेंट करेंगे x dash से और y-axis को हम रिप्रेजेंट करेंगे y dash से. और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर ऐसा बता दिया. तो दिस पार्ट यू नो. नाउ ये जो पॉइंट है, एनी पॉइंट इन हियर, अब इतना याद रखो कि OX का डायरेक्शन पॉजिटिव लेने का और OX डैश को हमको नेगेटिव लेने का. हियर x एक्सिस, ओके, x एक्सिस is represented by x dash and y axis. Okay, x axis is, or you can say in xy plane directly. Here O is the origin in xy plane. ये आपको पता है, in xy plane O is origin, O is origin. और फिर आपको याद रखना है कि x axis is x dash and y axis is y dash. फिर आपको याद रखना है कि direction OX is along, OX is positive x axis, or you can say positive x axis, and OX dash and OX dash is negative x axis, is negative x axis. OX is positive x axis and X is positive x axis and OX dash is negative x axis, or you can say negative direction of x axis, or you can say positive direction of x axis. Similarly OY जो मेजर हम करते हैं towards up, upward जाएंगे तो प्लस, upward जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव, राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव. तो क्या है OY क्या रखोगे is positive y axis and OY dash is negative y axis. So that is also done. अब any point in 2D क्या था? Any point in 2D for point P of xy, for point P of xy in xy plane, क्या टू डायमेंशन है R2. x को क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ P, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा ऑफ P, एब्सिसा ऑफ P. ये आपको याद रखना है. फिर y जो है उसको बोलते हैं
y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ p, और उसको बोलते हैं, दूसरा नाम है ऑर्डिनेट ऑफ p। तो आपको याद रखना है फॉर पॉइंट p ऑफ x y, x को बोलेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ p और y को बोलेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ p, और x का दूसरा नाम है एक्सिस ऑफ p और y का दूसरा नाम है y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट ऑफ p। अब इसका मैं आपको डेफिनेशन देता हूं, अब मैं आपको उसका डेफिनेशन देता हूं कि लेट pxy be any point in two dimension, be any point in 2D or R2 or xy plane x जो है उसको क्या बोलते थे, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, वो लिखो तो अच्छा है, और x का दूसरा नाम क्या था, एब्सिसा ऑफ p। पर हाँ, अब x कोऑर्डिनेट का क्या एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैं लिखता हूं कि x इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy। x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम y axis, perpendicular distance of pxy from y axis given the sign of x axis along which it is measured, given sign of x axis along which it is measured, along which it is measured। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन है x कोऑर्डिनेट का, ये है डेफिनेशन x कोऑर्डिनेट का। x कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम y एक्सिस गिवन द साइन ऑफ x एक्सिस अलोंग व्हिच इट इज मेजर्ड। और y कोऑर्डिनेट के बारे में हम लिखें, आप लिख लो, ये मैंने लिख लिया x कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन। अब y कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन लिख देते हैं। y कोऑर्डिनेट फॉर p ऑफ xy, y क्या था, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y क्या था, y कोऑर्डिनेट ऑफ p। ओके, लेट मी राइट दिस अगेन ताकि उसमें कुछ आ जाए। वेरी वेरी बिकॉज़ मुझे आपको ये समझाना है। फॉर p ऑफ xy, x क्या था, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, इसको क्या बोलते थे, एब्सिसा ऑफ p, और उसका मैंने क्या नाम दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p ऑफ xy, ऐसा लिखो, और pxy is understood। Is perpendicular distance of pxy from y axis given sign of x axis along which it is measured। ठीक है, और y को क्या बोलते थे, y को बोलते थे y कोऑर्डिनेट ऑफ p या ऑर्डिनेट ऑफ p। एक ही लाइन में आ जाएगा, फॉर p ऑफ xy, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, दो तीन बार आप लिखो तो अच्छा ही है, पर फॉर p ऑफ xy, x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ p, या x को बोलते हैं एब्सिसा ऑफ p। ओके, या x को बोलते हैं, वो क्या होगा उसका एक्चुअल डेफिनेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम y एक्सिस, ये याद रखना है, y एक्सिस given the sign of x axis
along which it is measured, along which it is measured, okay, along which it is measured, ठीक है। और फिर y को क्या बोलेंगे, y को बोलेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ p या ऑर्डिनेट ऑफ p, याद रखने का y को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ p या ऑर्डिनेट ऑफ p। और ये y क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम, कहां से हम रखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p, y क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p xy, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p xy फ्रॉम x एक्सिस। और उसको साइन इसका दे देगा, गिवन द साइन ऑफ y एक्सिस along which it is measured, along which it is measured। ये आपको याद रखना है। एक बार मैं वापस y कोऑर्डिनेट के बारे में लिख देता हूं। y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या था, x कोऑर्डिनेट क्या था, x कोऑर्डिनेट, x इज x कोऑर्डिनेट, तो y क्या होगा, एक बार देख लो, y क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, उसको मैंने क्या नाम दिया था दूसरा, ऑर्डिनेट ऑफ p, ऑर्डिनेट ऑफ p। और ये तो y कोऑर्डिनेट है, उसका डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दो तीन बार हमने x कोऑर्डिनेट के बारे में लिखा, x कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p xy फ्रॉम y एक्सिस, बट गिवन द साइन ऑफ x एक्सिस अलोंग विच इट इज मेजर्ड। तो y क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p xy फ्रॉम क्या होना चाहिए, x एक्सिस, वेरी गुड, गिवन द साइन ऑफ y axis, very good, given the sign of y axis along which it is measured, along which it is measured। ये हो गया हमारा definition of x coordinate and y coordinate। इधर let me define। अब अगर इधर कोई भी पॉइंट है x coordinate और y coordinate, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है xy, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है xy, तो इसका हम डिस्टेंस, इसका x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, बट इट इज मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस, ओके। और इस पॉइंट का मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, ओके। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, प्लस या माइनस, मैं आपको समझा रहा हूं। x कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है p of xy, so what is x coordinate, x coordinate is perpendicular distance of p from y axis। पर वो कैसा होना चाहिए, given the sign of x axis along which it is measured, ये पॉजिटिव x axis है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, प्लस, समझ गए। सपोज ये पॉइंट p of xy है, तो y क्या है उसका, y कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p from y axis, सॉरी, y coordinate is perpendicular distance of p from x axis, perpendicular distance from x axis, but it is measured along positive y axis, this distance is measured along positive y axis, so y coordinate क्या है, perpendicular distance of p of xy from x axis, so perpendicular distance of p from x axis, given the sign of y axis along which it is measured, it is measured along positive y axis, so here the y coordinate is positive। सपोज सेम लॉजिक, यहाँ पे एक पॉइंट है p of xy, सपोज यहाँ पे पॉइंट है p of xy, ओके। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने ले लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये हो गया p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, x को क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट या एब्सिस ऑफ p। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस, तो ये डिस्टेंस, बट इट इज गिवन द साइन, x कोऑर्डिनेट को किसका साइन देते हैं, गिवन द साइन ऑफ x एक्सिस अलोंग विच इट इज मेजर्ड, o x dash इज नेगेटिव x एक्सिस, इसलिए नेगेटिव होगा, दैट्स व्हाई यहां पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ओके।
ठीक, अब ये y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ये इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, बट y coordinate is given the sign of y coordinate is given the sign of y axis along which it is measured. So this distance is measured along OY. OY is positive y axis, so that's why यहाँ पे ये आएगा प्लस। समझ गए? अब क्या करते हैं? लास्ट टाइम एक बार ये देखते हैं, क्योंकि why this is important I will let you know because this few exercises वो उतने लेंथी और टफ नहीं है। ये थियरी अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो आपको जब हम स्ट्रेट लाइंस करेंगे आफ्टर मे बी से 1 वीक और 2 वीक्स, तो ये आपको बहुत इजी रहेगा। पॉइंट इन 2D क्या था? फॉर p ऑफ xy, फॉर p ऑफ xy, x क्या था? x कोऑर्डिनेट ऑफ p, और उसी x को हमने क्या बोला था? एब्सिसा ऑफ p, एब्सिसा ऑफ p, और x क्या था? perpendicular distance, x क्या था? perpendicular distance of p of xy from कहां से लेगा? y axis, very very important। और उसको साइन किसका लेगा? given the sign of x axis along which it is measured, ये लर्न हो गया आपको, सिंपल। 3D में बहुत इजी रहेगा। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट को क्या बोला था? ऑर्डिनेट ऑफ p, और ये y कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p ऑफ xy फ्रॉम कहां से होना चाहिए? x एक्सिस, from distance from x axis and given the sign of, so किसका साइन देंगे? given the sign of क्या होगा? y axis along which it is measured, simple, ठीक है? along which it is measured। ओके, तो अब ये दो बार लिखा, तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पे आपको समझना है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P ऑफ xy, यहाँ पे एक पॉइंट है P ऑफ xy, तो मैंने उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट x है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस from y axis and it is given the sign of x axis along which it is measured. So x coordinate is measured along negative x axis, so it has to be negative. So यहाँ पे x coordinate negative आएगा। What is y coordinate? Perpendicular distance of p from x axis and it is given the sign of y axis along which it is measured. तो यहाँ पे ये distance is measured along OY dash which is downwards, which is negative x axis. Negative y axis means it is measured along negative y axis, उसका मतलब y कोऑर्डिनेट कैसा होगा? नेगेटिव, सिंपल। और सपोज हम एक बात कर रहे हैं पॉइंट की, यहाँ पे एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट P of xy, suppose this is the point P of xy. What is x coordinate? X coordinate is perpendicular distance. X coordinate is perpendicular distance of P. Perpendicular distance of P from y axis. So y axis से perpendicular distance P का कितना है? But it is measured along OX, which is positive direction of x axis, positive x axis. इसके लिए x coordinate इधर क्या होगा? प्लस। P का y coordinate y है, उसको ordinate बोलते हैं। What is y coordinate? Perpendicular distance of P from x axis, and it is given the sign of y axis along which it is measured. So this distance is measured along negative y axis, OY dash negative y axis. So that's why negative y axis है, इसमें इसका y coordinate negative होगा। तो आपने देखा xy plane is divided into 4 equal parts, जिसको first quadrant बोलते हैं, second quadrant बोलते हैं, इसको third quadrant बोलते हैं, इसको fourth quadrant बोलते हैं। और आपको पता है कि first quadrant में x coordinate positive, y coordinate positive, second quadrant में x coordinate negative, y coordinate positive, third quadrant में x coordinate, y coordinate both are negative, and in the fourth quadrant x coordinate is positive, y coordinate is negative। और दूसरा xy plane में x axis भी आता है और y axis भी आता है।
तो ये आप समझ गए कैसे आया। तो सीधा आप लिख देता हूं कि द xy plane is divided into 4 equal parts, or I can write x axis and y axis divide x axis and y axis divide xy plane into 4 equal parts. Each part is called a quadrant, और वो सारे quadrant में क्या खासियत है वो मैं आपको लिखवा देता हूं जो आपको ऑलरेडी पता है। So this is the way, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे so now what I can write is that O is the origin, O is origin, x dash is x axis, y dash is y axis, x axis and y axis are perpendicular, OY is positive y axis, OY dash is negative y axis, OX is positive x axis, y dash is negative x axis, OX is positive direction of x axis, इसका भी बोल सकते हैं, OX dash को हम बोल सकते हैं negative direction of x axis, फिर OY को हम बोल सकते हैं positive direction of y axis, और OY dash को हम बोल सकते हैं negative direction of y axis। और अब जो आपको पता है तो मैं लिखूंगा कि x axis, अब पॉइंट लिख दो, x axis and y axis, x axis and y axis divide 2D और R2, और क्या बोलते हैं उसको xy plane into in 4 equal parts, each part is called a quadrant, each part is called quadrant। ओके, ये आपको पता है। और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होता है, एनी पॉइंट in xy plane is xy, x coordinate positive, y coordinate positive, any point in xy plane is xy, so x coordinate is negative, y coordinate is positive। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट xy जो होता है उसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट xy तो क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपल याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव x एक्सिस आता है, इसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव y एक्सिस आता है, इसमें y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव x एक्सिस आता है, इसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और पॉजिटिव y एक्सिस y आता है, इसमें y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस आता है, इसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x एक्सिस आता है, इसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में तुझे नेगेटिव y एक्सिस आता है। और आपको याद रखना है कि let pxy be any point, let pxy be any point in R2। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्या होता है, इट कंटेन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore first quadrant it contains points p of xy जहां पे x is positive, y is positive। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ऐसे लिखो मैं फर्स्ट लेट x और any point in R2, therefore first quadrant is set of points p of xy where x is positive, y is positive, obviously x is a real number, y is a real number। अब आप खुद सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में लिख दो, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में लिख दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में लिख दो। आप खुद सेकंड क्वाड्रेंट कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो लिखो, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे लिखोगे वो रिप्रेजेंटेशन लिखो, और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी आप रिप्रेजेंटेशन लिखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट is equal to set of points like p of xy where x is greater than 0, y coordinate is greater than 0। second quadrant क्या हो जाएगा, is a set of points like p of xy where x coordinate कैसा होता है negative, y coordinate positive, and obviously x and y are real numbers। okay, third quadrant में x coordinate negative होता है, y coordinate negative होता है, so it is a set of points like p of xy where x is negative, y is negative, and they are only real numbers। और fourth quadrant in xy plane
fourth quadrant in xy plane is a set of points like P of xy. Fourth quadrant, x coordinate पॉजिटिव होता है, y coordinate नेगेटिव होता है, and x and y are real numbers. ये हो गया. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x coordinate पॉजिटिव, y coordinate पॉजिटिव. Therefore, first quadrant is set of points like P of xy where x coordinate x is positive, y coordinate y is positive, x and y are real numbers. Finished. Clear. Now, अब ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अलावा एक्स एक्सिस भी आता है. तो हेडिंग दे दो एक्स एक्सिस. What is x axis? It is a horizontal line. It is a horizontal line. आपको याद रखना है. It is a horizontal line perpendicular to y axis. It is a horizontal line. It is a horizontal line perpendicular to y axis. और आपको याद रखना है कि any point on x axis is any point on x axis is given by P of x0. So उसका मतलब क्या? y coordinate of any point on x axis is 0. Y coordinate of any point on x axis is 0. ये आपको याद रखना है. तो उसका मतलब x axis को आप कैसे लिखोगे? तो the set of points P of x0. उसका y coordinate 0 होना चाहिए. उसका मतलब x axis, और आगे मैं लिख चुका हूं x axis में cox पॉजिटिव x axis है और cox dash नेगेटिव x axis है. उसका मतलब x axis is set of points like P of x0 का उसका y coordinate नेगेटिव 0 है और x is any real number. ये हो गया. अब हम लिखेंगे y axis के बारे में. y axis एक वर्टिकल लाइन होती है. इट इज अ वर्टिकल लाइन. इट इज अ, और ओके आप ऐसा लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एक लाइन है. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y is equal to 0. ये 2D में आपको अच्छी तरीके से जब मैं स्ट्रेट लाइंस पढ़ाऊंगा मतलब ज्यादा इफेक्टिवली समझ में आएगा. ये पॉइंट आप बाद में हाईलाइट करके रखना, इजीली याद रहेगा. फिर y axis, what is y axis? और हाँ, इक्वेशन ऑफ x axis y equal to 0 क्यों है? Because y coordinate of all the points on x axis are 0, so y equal to 0. What is y axis? It is a vertical line. It is a vertical line. It is a vertical line perpendicular to किसको? It is a vertical line perpendicular to x axis. ठीक है. फिर याद रखना है any point on y axis, any point on y axis होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है. या ऐसे याद रखो x कोऑर्डिनेट of any point on y axis, x coordinate of any point on y axis is 0. इसका मतलब any point on y axis क्या आएगा? Any point on y axis is P of 0 y. ये उसका x coordinate 0 होगा. So definitely y axis is set of points like P of 0 y where y is any real number. Okay. और दूसरा क्या याद रखोगे कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, हाँ क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन y एक्सिस जो वर्टिकल लाइन उसके सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. तो a is x equal to 0. ये आपको याद रखना है. ये और ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखना है. उसमें भी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस का p of x0 वो आपको याद रखना है. तो ये हो गया x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग. 2D के बारे में कितना क्लियर है? ओके. डिस्टेंस फार्मूला इन R2 भी मैं आपको दे देता हूं. डिस्टेंस फार्मूला इन R2. डिस्टेंस फार्मूला इन R2 और 2D और xy प्लेन.
और xy प्लेन। क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला इन r2 और 2d और xy प्लेन। लेट ax on y1 bx to y let ax on y1 and bx to y2 be 2 points. Just 1 minute. Let ax on y1 any point in r2 के अंदर p of xy, so let ax on y1 comma bx to y2 be 2 points in r2 मतलब 2d. So therefore ये जो डिस्टेंस ab है, डिस्टेंस ab, डिस्टेंस बिटवीन a and b, डिस्टेंस बिटवीन a and b, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a and b, उसका सिंबल डिस्टेंस ab होता है जो हम लिखते हैं ab। और वो ab क्या होता है, ab आएगा स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, means ab is equal to, so therefore distance ab is equal to square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. This you have already done. This you have already done in 9th standard and 10th standard, I believe. So ab can also be written as x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. मतलब difference in x coordinates the square root of difference in x coordinates का square plus difference in y coordinates का square. Difference has to be taken in the same order. AB क्या होगा square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, और AB will be equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. That is हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर क्या आएगा x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, or we can write AB as, or we can write AB square as x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. बराबर है? Just 1 minute, let me have some water and continue. So we have finished 1 dimension, 2 dimension. Now let us go for 3 dimension, which is 3D. Okay. अब 3 dimension is 3D or R3 or XYZ. You can say space, or you can say 3D or R3 or space. Okay, 3D और R3 और space. 3 dimension को R3 बोलते हैं या space बोलते हैं। मतलब अगर एक लाइन है, अगर आप जरा समझो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पे, ये बोर्ड पे, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये वाला, ये जो व्हाइट बोर्ड है, उस पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये 1 डायमेंशन हो जाएगा। अगर ये पूरा बोर्ड या मैं ऐसा एक रेक्टेंगल बना दूं या जस्ट एक प्लेन शेप बनाता हूं, दिस फ्लैट सरफेस ये प्लेन हो जाएगा। प्लेन मतलब ये 2 डायमेंशन है। और मैं जिस क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं उस क्लास को अगर आप कंसीडर करोगे तो 3 डायमेंशनल फिगर हो जाएगा, मतलब क्यूबॉइड, फिर क्यूब, वैसा। आई होप आई एम क्लियर। इन 3D हम 3D की बात कर रहे हैं। इन 3D there are three mutually perpendicular planes. There are 3 mutually perpendicular planes, namely xy plane, ये आपको याद रखना है, yz plane and zx plane। मतलब इसमें क्या होंगे, 3 mutually perpendicular planes। इसमें R3 में in 3D there are 3 mutually perpendicular planes, इसको हम बोलते हैं xy plane, yz plane और zx plane। अब इसमें 3 mutually perpendicular lines भी होती हैं, और वो 3 mutually perpendicular lines होती हैं x axis, y axis और z axis, x axis, y axis और z axis। there are 3 mutually perpendicular lines
perpendicular lines, namely x-axis, y-axis and z-axis Only x-axis, y-axis and z-axis. Any point in 3D, or R3 is 2D में कोई भी पॉइंट का P of x y, वन डायमेंशन में एनी पॉइंट का P of x था, एनी पॉइंट इन वन डायमेंशन इज P of x, एनी पॉइंट इन टू डायमेंशन इज P of x1, सो एनी पॉइंट इन थ्री डायमेंशन, उसके लिए थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है, सो डेफिनेटली रियल नंबर्स चाहिए, सो P of x, y, z हियर. ओके, अब जो x एक्सिस है उसके लिए मैं क्या करूंगा, x एक्सिस all the three, x axis, y axis and z axis, y axis, z axis meet at point origin, और आपको ये याद रखना है x axis x dash, y dash, z dash are, you can say x axis, y axis and z axis respectively are x axis, y axis, z axis respectively. और आपको याद रखना है वो ओरिजिन है तो OX क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस, OX डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव x एक्सिस फॉर x एक्सिस x डैश फॉर x एक्सिस जो है x डैश OX वो क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, OX डैश है नेगेटिव x एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस फॉर y एक्सिस जो है y डैश, OY क्या होगा, OY होगा पॉजिटिव y एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, OY डैश क्या होगा नेगेटिव y एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, z एक्सिस क्या है, z डैश, तो उसमें OZ क्या होगा पॉजिटिव z एक्सिस और OZ डैश होगा नेगेटिव, सो मैं वही लिख रहा हूं फॉर z एक्सिस जो है z डैश, इसमें को ओरिजिन था OZ क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव z एक्सिस और OZ डैश क्या है नेगेटिव z एक्सिस, ठीक है. और हाँ ओरिजिन यहाँ पे O है. ओके, लेट और ये याद रखना है कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं और थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलते हैं. ओके, सो क्या बोलते हैं, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, mutually perpendicular lines कौन सी, x axis, y axis, z axis are known as, they are called coordinate axis. ओके, और ये जो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं 3D में थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस in 3D और R3, और फिर क्या लिखेगा in 3D मतलब R3 और 3 in 3 dimension, that is 3D और R3 dimension is R3, the three mutually perpendicular planes, three mutually perpendicular planes कौन से, three mutually perpendicular planes, xy plane, yz plane, zx plane are called Cartesian coordinate planes, Okay, अब
R1 वन डायमेंशन में एनी पॉइंट का P ऑफ x मैंने समझा दिया। R2 टू डायमेंशन 2D में कोई भी पॉइंट का P ऑफ xy, वहां पे x क्या था, x एक्सिस, y x क्या था, x कोऑर्डिनेट, y क्या था, y कोऑर्डिनेट, और हमको 2D में 4 कोऑर्डिनेट मिले थे। x axis and y axis divide the whole xy plane in 4 equal parts, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Yes, तो अब in three mutually perpendicular planes, xy plane, yz plane, zx plane, and three mutually perpendicular lines, x axis, y axis and z axis, वो 3D आखिरी को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके पहले ऐसा लिख दो, let p x y z be any point in R3 और 3 डायमेंशन। यहाँ पे x को क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट, x को बोलेंगे, ध्यान से अच्छे तरीके से लिखो, x को बोलेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ p, और ये x हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p x y z फ्रॉम yz प्लेन, x है तो yz प्लेन से डिस्टेंस from yz plane given sign of x axis along which it is measured, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, x में x is x कोऑर्डिनेट ऑफ p, x को क्या बोलेंगे, x क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p x y z फ्रॉम कौन सा प्लेन, yz प्लेन, और उसको साइन किसका देने का, गिवन द साइन ऑफ x एक्सिस along which it is measured। फिर y जो है उसको क्या बोलेंगे, p of x y में y जो है उसको क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, वो क्या होगा, ये y क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p x y z फ्रॉम कौन सा प्लेन होगा, p x y z फ्रॉम y कोऑर्डिनेट है तो zx प्लेन, तो उसको साइन किसका देने का, गिवन साइन ऑफ y axis along which it is measured, given sign of y axis along which it is measured। ठीक है, अब z क्या होगा, z कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो आपको पता है वो z कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कौन सा पॉइंट, p x y z फ्रॉम p x y z फ्रॉम which plane, x y प्लेन होगा। सो therefore z जो है वो p x y z का z कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट ऑफ p, और वो z क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p x y z फ्रॉम कौन सा प्लेन, z कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ व्हिच प्लेन, x y प्लेन, इसको साइन किसका देगा, गिवन साइन ऑफ ऑब्वियसली z एक्सिस along which it is measured, ठीक है। अब ये तीनों आपको समझ में आ गया, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ p, y इज y कोऑर्डिनेट ऑफ p, z इज z कोऑर्डिनेट ऑफ p, आपको पता चल गया, और x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से प्लेन से किसको साइन देते हैं वो मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में लिख दिया है, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, और x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम yz प्लेन गिवन द साइन ऑफ x एक्सिस, y क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम zx प्लेन गिवन द साइन ऑफ y एक्सिस, z is z कोऑर्डिनेट ऑफ p, z क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xy प्लेन गिवन द साइन ऑफ z एक्सिस। अब ये पूरा आपको क्लियर हो चुका है, तो ये तीनों चीजें मैं याद कर लेता हूं, ठीक है, ये हमको याद रखनी है। हमने p of xy में डिटेल में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे आया वो मैंने आपको समझाया, तो ये इजीली अब आपको आ जाना चाहिए। ओके, आई विल रब दिस ऑफ, ओके। सो अब आपको याद रखना है कि एनी पॉइंट ए क्या होता है, x y z, और उसमें कितने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, 3। तो सपोज वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में ड्रॉ करना है, मैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में ड्रॉ करना है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस।
ओके नाउ तीनों लाइंस कहां पे लिखी है? ओरिजिन पे ओ एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कैसा है? तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में डॉट बना रहा हूं बिकॉज़ ये 2D है, ये प्लेन फिगर है, फ्लैट सरफेस प्लेन है, उसको मैं 3D नहीं बता सकता, खाली आपको अंडरस्टैंडिंग मिले इसलिए मैं यहां पे ऐसे बता रहा हूं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में डॉटेड बना रहा हूं। दिस इज O, दिस इज x डैश x, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो आपको पता है कि z एक्सिस कैसे बनाएंगे? y डैश होता है तो नीचे, फिर z एक्सिस क्या होता है? z डैश, तो ये नीचे जाएगा ऐसे, तो वो डॉटेड हम बना देंगे। ठीक है, एनी पॉइंट इन, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस x dash x axis y dash and z axis z dash they meet at a point, यहां पे मैंने बता दिया z dash they meet at a point origin O। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है वो हम अब समझ गए। अब आपको ये याद रखना है कि आपको यहां पे क्या याद रखना है कि एनी पॉइंट इन 3D is p of x y z, any point in 3D is p x y z, any point in 3D is p x y z, x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, y को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, z को बोलते हैं z कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आपको समझाना है कि it will divide this 3 mutually perpendicular planes and 3 mutually perpendicular lines। 3 mutually perpendicular planes कौन से हैं? xy plane, yz plane, zx plane। 3 mutually perpendicular lines कौन सी हैं? x axis, y axis, z axis। तो वो 3D को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके पहले मैं आपको लिख देता हूं कि xy plane, और I can write that I can write a very simple line कि x axis and y axis, अब याद रखो x axis and y axis together form xy plane, समझ गए? फिर y axis and z axis together form yz plane, और आपको पता है तीसरा स्टेटमेंट z axis and x axis together form zx plane। ओके, अब अगर आप समझ सकते हो तो आप समझो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आपके तरफ पॉजिटिव z एक्सिस, ओरिजिन से राइट, मैं सपोज ओरिजिन हूं, आई एम ओरिजिन से यहां पे लेफ्ट पॉजिटिव x एक्सिस है, समझने की कोशिश करो। ये पॉजिटिव x एक्सिस मतलब मैं ओरिजिन हूं, तो ये लेफ्ट, ये हो गया पॉजिटिव x एक्सिस, ये ऊपर वाला गया पॉजिटिव y एक्सिस, और आपके तरफ एक तीसरी परपेंडिकुलर लाइन आ रही है वो है पॉजिटिव z एक्सिस। तो ये अगर पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये लेफ्ट वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव x एक्सिस। ये लाइन ऊपर तो पॉजिटिव y एक्सिस है, तो नीचे जो लाइन जाएगी वो हो जाएगी o y डैश, वो हो जाएगी नेगेटिव y एक्सिस। और आपके तरफ कौन सी लाइन आ रही है? oz, आपके तरफ कौन सी लाइन आ रही है? oz मतलब पॉजिटिव z एक्सिस, तो पीछे जो लाइन जाएगी वो कौन सी होगी? वो होगी नेगेटिव z एक्सिस। ठीक है, अब आप समझ गए, मतलब मैं अगर ओरिजिन हूं तो मुझ में से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस निकल रही हैं, एक फ्लैट लाइन, दिस इज द फ्लैट लाइन, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। फिर एक दिस इज, यू कैन इमेजिन दिस वे, एक वर्टिकल लाइन लाइक दिस, वर्टिकल लाइन व्हिच इज y एक्सिस, और एक ऊपर वाला जो जा रहा है वो है पॉजिटिव y एक्सिस, और नीचे जो जा रहा है वो है नेगेटिव y एक्सिस। और एक लाइन मेरे में से आपके तरफ आ रही है, तो आपके तरफ जो लाइन आ रही है वो है पॉजिटिव z एक्सिस, और पीछे जो जा रही है वो है नेगेटिव z एक्सिस। अब आप सोचो, मैं इस रूम में है, हम लोग अभी इस क्लासरूम में हैं, तो उसमें कौन-कौन सी लाइंस आएंगी, उसमें से कौन-कौन सी लाइंस आएंगी वो मैं समझाऊं। तो आपको पॉजिटिव x एक्सिस ये आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉजिटिव y एक्सिस इज द वर्टिकल लाइन, और x axis is the horizontal line, y axis is the vertical line, आपको समझ में आ गया। और z axis वो कौन सी लाइन है? पॉजिटिव z axis towards you और नेगेटिव z axis मेरे पीछे। So this is x axis, y axis, z axis, ये आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या लिखा? x axis and y axis form an xy plane। तो यहाँ पे x axis और y axis मतलब ये जो प्लेन होगा
ऐसा ये जो दीवार है, ये जो दीवार है वो दीवार कौन सी होगी, एक्स वाई प्लेन, आप समझ गए। फिर एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस आ जाता है और वाई एक्सिस आ जाता है, मतलब ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हूं उसमें कौन सा आएगा, आपके तरफ कौन सी लाइन आ रही है, z एक्सिस, आपके तरफ कौन सी आ रही है, पॉजिटिव z एक्सिस, तो ठीक है, पर z एक्सिस आ रही है, और ये जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर हो जाएगा इस रूम का, वो क्या हो जाएगा, z एक्सिस पे, क्योंकि उस पे z एक्सिस आती है और x एक्सिस आती है। और ये जो क्लास है उसकी जो यहाँ पे राइट साइड की जो दीवार है, मेरे तरफ से राइट साइड की जो दीवार है उसमें क्या आएगा, y एक्सिस आएगा और z एक्सिस आएगा। तो वो जो दीवार है या ये वाला पॉइंट, पॉजिटिव y एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस, तो ये जो दीवार बनेगी, ये जो दीवार यहाँ से बनेगी वो क्या होगी, वो होगी yz प्लेन। ये आप समझ गए। अब ये xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है, और x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, वो पूरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप सोचो, मैं इस रूम में हूं, मैं इस क्लासरूम में हूं, ये क्लासरूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, क्लासरूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, अबाउट नीचे जो शॉप है वो एमआई मोबाइल की है। तो मैं अभी कहां पे हूं, मैं एक रूम में हूं, इस रूम में आपके तरफ कौन कौन सी लाइन आ रही है, एक सपोज मैं ओरिजिन हूं, जस्ट इमेजिन कि ओरिजिन, यहां पे आपके पास वो 3 दीवार है, एक तो ये फ्लैट सरफेस ये हो गया जिस पे बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन हो गया, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस आ गया टुवर्ड्स राइट। आप सोचो ये जो दीवार है उसका ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रखा है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, और जो आपके तरफ लाइन आ रही है वो जेड एक्सिस का डायरेक्शन है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाएगा। आप समझ गए? ओके, अब मैं क्या समझा रहा हूं कि ये जो क्लासरूम है जहां पे मैं अभी खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो लेक्चर, वो फर्स्ट फ्लोर पे, और मेरे नीचे जो क्लासरूम है, मेरे नीचे जो शॉप है वो एमआई मोबाइल की है, मेरे राइट में एक लाइटनिंग शोरूम है, इसके पीछे कुछ नहीं है, पर उसके पीछे आप लोग सोच सकते हैं, मींस यू अंडरस्टूड राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट नाउ वी आर इन अ क्लासरूम, और वो फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, सो अगर मैं फर्स्ट फ्लोर में यहां पे खड़ा हूं, तो ये जो रूम है या ये जो रूम है, ये जो रूम है उसमें कौन कौन से 3 लाइंस आ रहे हैं, उसमें कौन कौन से 3 लाइंस आएंगे, एक तो ये लाइन आएगी, एक तो ये लाइन आएगी, और ये वो लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये लाइन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओएक्स, फिर एक दूसरी लाइन होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस ओवाई, और तीसरी लाइन होगी आपके तरफ जो आ रही है ओरिजिन से ओजेड, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा, जो फर्स्ट पॉइंट मुझे मिलेगा P ऑफ x y z, P ऑफ x y z, उसमें वो x कोऑर्डिनेट ox पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और z कोऑर्डिनेट z पॉजिटिव, ये फर्स्ट पार्ट आएगा, पहला रूम आएगा। ओके, अब दूसरा रूम मुझे ढूंढना है, मुझे दूसरा रूम ढूंढना है, मुझे दूसरा रूम ढूंढना है। तो उसमें आप जरा सोचो, यहाँ पे मैं रूम में हूँ, यहाँ पे मैं जिस रूम में हूँ, मेरे बाजू वाला जो रूम है, मेरे बाजू वाला जो रूम है, उसमें क्या होगा, उसमें ऊपर वाली लाइन तो होगी, उसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं जाएगी, ओरिजिन के लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस जाएगा, उस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। इसमें पॉइंट P x y z जो सेकंड रूम है, मतलब लाइटिंग वाला शोरूम है बाजू वाला, उसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और z कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। फिर तीसरा रूम जो हमको मिलेगा वो कौन सा होगा, ओके, अब उसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ओके। अब वो जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग में हम जिस क्लासरूम में हैं, हम जिस क्लासरूम में हैं, ओके, तो मेरे क्लासरूम के नीचे क्या हो, हम इस क्लासरूम में क्या हो रहा है, OX पॉजिटिव x एक्सिस है, OX पॉजिटिव x एक्सिस है, OY पॉजिटिव y एक्सिस है, और OZ पॉजिटिव z एक्सिस है। ये रैंडमली नंबर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका नाम होगा, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। अब मैं क्या बता रहा हूं कि पहला रूम, ये दूसरा रूम है। अब तीसरा सोचो, तीसरा रूम मुझे कहां पे मिल सकता है, तीसरा रूम मुझे मिलेगा, ये जो रूम है, मेरा जो रूम है, एग्जैक्टली उसके पीछे हमको एक रूम मिल सकता है। वो रूम में क्या जाएगा, उसमें पॉजिटिव ओ एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा कि नहीं होगा, यस, उसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे जो रूम है उसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव जाएगा, उसमें OY भी होगा, उसमें पॉजिटिव y एक्सिस होगा, वो प्लस होगा, और उसमें आपके तरफ जो लाइन आ रही है OZ वो नहीं होगी, उसमें पीछे वाली लाइन जाएगी, मतलब OZ डैश जाएगा, पीछे वाला जो होगा OZ डैश की वजह से उसमें
z कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। फिर जो ये रूम है, ये जो हमारा रूम है, उसके बाजू में क्या था, लाइटनिंग वाला रूम, तो उसके पीछे वाला एक रूम सोचो, उसके पीछे वाला रूम सोचो, उसमें पॉइंट p x y z क्या हो जाएगा, जरा सोचो। ये जो हमारा क्लासरूम है, उसके पीछे जो क्लासरूम है, उसके बाजू वाला रूम सोचो, या फिर ये जो हमारा रूम है, उसके बाजू में लाइटनिंग है, उसके पीछे वाला रूम सोचना है। उसमें जरा सोचो क्या क्या है। उसमें यहाँ पे OX था, हमारे रूम में OX था, तो O वाले रूम में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, OX डैश आएगा, OX डैश आएगा, इसलिए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। उस रूम में OY, वो OY पॉजिटिव y एक्सिस आएगा, इसलिए y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। और उसमें आपके तरफ वाला नहीं आ रहा है, आपके तरफ वाला नहीं आएगा, वो लाइटनिंग के बाजू वाला है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जिस क्लासरूम में है, उसके राइट में जो शॉप है, उसके पीछे एग्जैक्ट, यू अंडरस्टूड। तो उसमें क्या आएगा, उसमें नेगेटिव x एक्सिस OX डैश आएगा, फिर पॉजिटिव y एक्सिस OY आएगा, और नेगेटिव z एक्सिस पीछे वाली लाइन जाएगी। सो दैट्स व्हाई द x कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। अब ये हो गए चार रूम मुझे मिले। चार रूम कौन कौन से मिले? एक मिला मुझे, मैंने क्या रखा, ये जो रूम है जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट टाइम, वापस एक बार समझा देता हूँ। उसमें एक थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ये जो दीवार है इसका बेस x एक्सिस मैंने रखा है, और इसका विड्थ y एक्सिस रखा है, और इसका हाइट आपके तरफ जो लाइन आ रही है टुवर्ड्स राइट, आपके तरफ से देखो, ये टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव x एक्सिस OX, ऊपर जा रही है पॉजिटिव y एक्सिस OY, और आपके तरफ जो लाइन आ रही है OZ। ठीक है, वो हो गया हमारा पहला रूम, पॉजिटिव x और x प्लस प्लस प्लस, ये पहला रूम। बाजू वाला जो रूम है, उसमें क्या आएगा, OX डैश OY OZ, मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मेरे xz इस क्लासरूम के बाजू वाला, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, z कोऑर्डिनेट नेगेटिव। फिर हमारा जो क्लासरूम है, उसके पीछे अगर हम जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी लाइंस आएंगी, उसमें OX आएगा, इसलिए x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, फिर उसमें OY भी आएगा, इसलिए y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और उसमें OZ डैश आएगा, इसलिए z कोऑर्डिनेट नेगेटिव। और सेम लॉजिक के ये जो हमारे क्लासरूम के बाजू में जो लाइटनिंग वाला है, एग्जैक्ट शॉप इज एडजेसेंट टू अवर क्लासरूम विच इज लाइटनिंग, उसके पीछे वाला जो रूम होगा उसमें क्या आएगा, उसमें नेगेटिव x एक्सिस, इसलिए OX डैश, सो दैट्स व्हाई x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, उसमें OY डैश OY आएगा, पॉजिटिव y एक्सिस इसमें पॉजिटिव, और उसमें OZ डैश आएगा, इसमें नेगेटिव जाएगा। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे कि फिफ्थ P ऑफ XYZ वो क्या होगा, P ऑफ XYZ, ये जो हमारा क्लासरूम है एग्जैक्ट उसके नीचे कौन सी शॉप है, हमारा जो क्लासरूम है उसके एग्जैक्ट नीचे कौन सी शॉप है, MI मोबाइल है। तो MI मोबाइल के नीचे एग्जैक्ट हमारे नीचे MI मोबाइल है, तो MI मोबाइल में क्या होगा, MI मोबाइल में OX होगा, यस OX होगा, OY नहीं होगा, OY डैश होगा, इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, OY नहीं नीचे है मतलब OY डैश, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और उसमें आपके तरफ वाली लाइन को आएगी तो z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। फिर जो सिक्स्थ होगा P ऑफ XYZ, पांच लोग को मिल गए। अब देखते हैं और कौन कौन मिल सकते हैं। ये जो रूम है हमारा क्लास, इसके बाजू में क्या था, राजू फुटवेयर, अरे सॉरी दिस लाइटनिंग वाला शॉप, लाइटनिंग वाले शॉप के नीचे भी मुझे एक्चुअली हमारे पास चार रूम है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो एग्जैक्ट हर एक फर्स्ट फ्लोर के नीचे एग्जैक्ट एक रूम हमको मिल सकते हैं या नहीं, हाँ, तो टोटल हमको 8 रूम मिल जाएंगे। ये पहला रूम, फर्स्ट फ्लोर पे पहला रूम मेरा, हमारा क्लासरूम पहला रूम। दूसरा क्लासरूम कौन सा है, दूसरा रूम हो जाएगा हमारा राइट वाला लाइटनिंग, और ये दो शॉप के पीछे दो रूम मिलेंगे, तो टोटल 4 मतलब फर्स्ट फ्लोर। अब 4 जो नीचे है ऑन द ग्राउंड फ्लोर, उसमें पहला आएगा MI मोबाइल वाला जो मैं नीचे बताया, उसमें OX आएगा, OY, उसमें OX आएगा, OY डैश आएगा, और OZ आएगा, तो मैं लिख लिया। अब एग्जैक्ट MI मोबाइल के बाजू में जो शॉप होगी इसमें क्या आएगा, उसमें OX आएगा, जस्ट इमेजिन OX आएगा, तो उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, उसमें OY डैश मतलब वो नीचे है मतलब y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, और उसमें आपके तरफ है इसमें z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। 7 जो होगा वो कौन सा, MI मोबाइल है या हमारे पीछे जो रूम था, ये जो हमारा क्लासरूम है उसके पीछे जो फर्स्ट रूम है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, उसके नीचे एक शॉप होगी या उसके नीचे एक रूम होगा, उसमें क्या होगा, जस्ट इमेजिन उसके लिए होगा पॉइंट P X Y Z, तो उसमें x कोऑर्डिनेट इज मेजर्ड अलोंग क्या आएगा, इज मेजर्ड अलोंग OX ही आएगा, OX उसमें नीचे की बात हो रही है एग्जैक्ट MI मोबाइल के पीछे वाला, MI मोबाइल में क्या है प्लस माइनस माइनस, MI मोबाइल में प्लस माइनस माइनस है, तो जरा देखते हैं
MI मोबाइल में प्लस माइनस माइनस है एग्जैक्ट मेरे नीचे, तो उसके पीछे हम जाएंगे तो एग्जैक्ट उसके पीछे जो रूम होगा उसमें x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव, उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, यस, उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, फिर उसमें y कोऑर्डिनेट ओ y डैश नीचे है इसलिए माइनस होगा, और उसमें जो z कोऑर्डिनेट होगा mi के पीछे वाला उसमें आपके तरफ वाली लाइन नहीं आएगी, ये पीछे वाली जाएगी, उसका मतलब माइनस आएगा। और एक वो क्या होगा P of x y z, वो क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, वो कौन सी शॉप होगी, जो लाइटिंग वाला शॉप है उसके नीचे उसके पीछे वाला, या फिर हमको लेना है कि हमारा जो क्लासरूम है उसके राइट में कौन सा है, उसके राइट में लाइटिंग वाला शॉप है, उसके पीछे हम एक शॉप रखेंगे उसके नीचे, मतलब 4 रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, एग्जैक्ट उसके नीचे वाले हमको 4 रूम चाहिए। अब वी आर इंटरेस्टेड इन द, you can say, the room or a class which is on the ground floor exactly behind the shop which is, मेरे शॉप के बाजू में कौन सा है, मेरे शॉप के राइट में कौन सा है, राइट नहीं, राइटिंग के नीचे जो शॉप है MI मोबाइल के राइट में उसके पीछे वाला, तो उसमें क्या है, OX में क्या आएगा, जस्ट इमेजिन OX, अगर मैं वहां पे सोचता हूं तो उसमें OX डैश आएगा, तो उसमें कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, उसमें OY डैश जाएगा तो उसमें Y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव जाएगा, और उसमें OZ डैश जाएगा, मतलब उसमें जो Y कोऑर्डिनेट है Z कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आएगा। आप सोच सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऊपर ये 8 क्वार्टर्स मिल गए, अगर आप ये 8 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये 5 मिनट्स का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया आप समझ गए हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहला ऑप्शन में प्लस 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 आ गया पहला में, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस आ गया, फिर 2 माइनस प्लस, ओके ये आ गया करेक्ट, प्लस माइनस प्लस प्लस, यस, फिर है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कहां पे है, माइनस माइनस प्लस नहीं आ रहा है, जैसे प्लस प्लस माइनस आ रहा है, प्लस प्लस माइनस भी आ गया, दूसरा किया है, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो वेट, ये किस रूम में है, OX OY OX OY OX OY OZ प्लस 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 सही है, फिर मैंने बाजू वाला लिया था तो बाजू वाले में OX डैश आना चाहिए, OY OX डैश OY OZ, तो माइनस प्लस प्लस सही है, फिर मैंने तीसरा लिया था प्लस प्लस माइनस, मतलब प्लस प्लस माइनस, मतलब एग्जैक्ट हमारे क्लासरूम के पीछे वाला क्लासरूम मैंने सोचा था एग्जैक्ट फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसमें OX आएगा, OY आएगा, OZ डैश आएगा, मतलब प्लस प्लस माइनस आएगा, ये सही है। फिर जो पीछे वाला जो क्लासरूम है, हमारे क्लासरूम के पीछे वाला जो शॉप है उसके बाजू वाला, मतलब उसके उस क्लासरूम के राइट में, तो उसमें क्या जाएगा, उसमें OX डैश जाएगा, OX डैश जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव जाएगा, OY डैश जाएगा और OZ डैश जाएगा, मतलब OX डैश मतलब नेगेटिव, OY पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमारा जो क्लासरूम है उसके नीचे वाला मैं एग्जैक्ट सोच रहा हूं, हमारा जो क्लासरूम है उसके नीचे वाला, तो उसमें क्या आएगा, OX OY डैश, OX मतलब पॉजिटिव नीचे है तो उसमें OX आएगा, OY डैश आएगा और OZ आएगा, मतलब प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, दैट इज आल्सो करेक्ट। फिर 6 हम लेते हैं जो राजू फुटवेयर, अरे सॉरी, मतलब हमारे क्लासरूम में नीचे MI मोबाइल हो गया, MI मोबाइल के एग्जैक्ट एडजेसेंट राइट साइड की बात कर रहा हूं, मतलब जो बाजू में लाइट है उसके नीचे, तो उसके नीचे क्या जाएगा, यहाँ पे ये जो है इसमें OX है तो उधर OX डैश जाना चाहिए, OX डैश OY डैश जाना चाहिए, एग्जैक्ट उसके नीचे क्लासरूम के लिए वो जो शॉप है उसके लिए OX डैश OY डैश और OZ, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज द 6th रूम। 7th रूम कौन सा मैं बोल रहा हूं, नीचे जो MI मोबाइल है एग्जैक्ट ग्राउंड फ्लोर के उसके पीछे वाला और उसके पीछे वाला, या ये जो हमारा क्लासरूम है उसके पीछे वाला जो रूम है उसके नीचे, उसमें क्या है जरा सोचो। MI मोबाइल में क्या था, MI मोबाइल में OX था, OX OY डैश OX OY डैश और आपके तरफ, तो उसके पीछे जो रूम जाएगा उसमें OX आएगा, OX आएगा, उसमें OX होगा, यस उसमें OX होगा, उसमें OY डैश होगा और उसमें OX OY डैश और OZ डैश होगा। OX मतलब
पॉजिटिव, उसमें OX मतलब पॉजिटिव, OX मतलब पॉजिटिव, OY डैश मतलब Y कोऑर्डिनेट नेगेटिव और उसमें OZ डैश मतलब इसमें Z कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये 7th रूम मिलेगा। और 8th रूम जो है हमारा 8th रूम वो कौन सा है? MI मोबाइल, हमारे क्लासरूम के नीचे MI मोबाइल के बाजू में जो क्लासरूम है या बाजू में जो शॉप है उसके एग्जैक्ट पीछे। अंडरस्टूड? और यू कैन से हमारे क्लासरूम में राइट में इज लाइटनिंग सॉल्यूशन का शॉप, उस शॉप के पीछे जो शॉप है उसके नीचे उसमें क्या होगा? जस्ट इमेजिन उसमें OX नहीं आएगा, उसमें OX डैश आएगा मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ओके, उसमें x कोऑर्डिनेट OX डैश आएगा, नीचे है मतलब OY डैश और OZ डैश तीनों नेगेटिव। So this will be the 8th. Yes, this is also correct. So let me check in the textbook. एक को गलत हो गया था कि 8 आ रहे हैं। Let me see the table page number 270 पे दिया प्लस 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 करेक्ट, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस भी करेक्ट, फिर है माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 आ गए, चौथा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, चौथा ये भी आ गया, पांचवा है प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यस फिफ्थ इज करेक्ट। इसका मींस सिक्स्थ में है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके लेट मी पुट दैट, ये मेरे 8 है। अब मैं टेक्स्ट बुक में जो 8 है वो मैं चेक करता हूं कि 8 के 8 आ गए कि नहीं। अभी मेरी मिस्टेक पर्सनली ऐसी नहीं होगी। यहां पे z था, यहां पे माइनस था। ओके फर्स्ट है प्लस प्लस प्लस, सो प्लस प्लस प्लस, ओके सो ठीक। फिर है सेकंड है माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, ओके माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके टिक। 3 आ गए, 3 मैच हो गए टेक्स्ट के साथ। फोर्थ प्लस माइनस प्लस, चौथा रूम प्लस माइनस प्लस, चौथा रूम इनका है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ओके तो चौथा रूम मैच हो गया। फिफ्थ रूम प्लस प्लस माइनस, ओके ये भी मैच हो गया। फिफ्थ रूम। सिक्स्थ रूम जो है वो है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ओके तो सिक्स्थ रूम भी मैच हो गया। सेवंथ क्या है? सेवंथ इज माइनस माइनस माइनस, ओके वेरी नाइस। और 8 प्लस माइनस माइनस, 8 इज प्लस माइनस माइनस, यस। सो मैंने आपको बता दिया कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस x axis, y axis and z axis and three mutually perpendicular means xy plane, zx plane and xy plane, yz plane and zx plane divide the 3D or R3 in 8 equal parts। जहाँ पे x coordinate y coordinate के साइन yes yes अलग होंगे और हर एक इक्वल पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्टेंट, और वो मैं आपको लिखाता हूँ। सो ये 5 to 10 minutes जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायरेक्टली आई ट्राई टू एक्सप्लेन। क्लासरूम में एक्सप्लेनेशन देना बहुत इजी होता है, पर अभी जो मैंने आपको समझाया आई विल ट्राई कोई दूसरे मेथड से मैं रिकॉर्ड करके एक्सप्लेनेशन देता हूं, बस समझ लीजिए। So now what I will write, I will write a three mutually perpendicular planes, xy plane, yz plane and zx plane, zx plane and three mutually perpendicular lines and three mutually perpendicular lines on the x-axis, y-axis, z-axis. Divide the three-dimensional or R3 in 8 equal parts. Each part is called an octant. अब उस ऑक्टेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। दिस पार्ट इज क्लियर। अब वो जो 8 ऑक्टेंट्स हैं वो हम लेट अस फिनिश दैट ऑक्टेंट वाला पोर्शन, लेट अस फिनिश दैट फर्स्ट। तो ऑक्टेंट के लिए तो 8 ऑक्टेंट जो है वो हम इधर ड्रॉ कर देंगे। 8 ऑक्टेंट कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले ऑक्टेंट जो है उसका
y कोऑर्डिनेट का साइन, z कोऑर्डिनेट का साइन, और उसका नाम हम क्या लिखेंगे, दैट आई विल बी राइटिंग एंड नेम of the octet. Okay, the first octet जो theory में दिया है next to 1. Okay, let me draw 4 octets over here or 4 on the right side of the first octet, second octet, third octet, fourth octet. First octet is उसमें first octet में x में दिया है x coordinate is positive, y coordinate is positive, z coordinate is positive, तो उसका नाम क्या आएगा, O X Y Z. तो x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी, तो उसमें क्या आना चाहिए, पॉजिटिव x एक्सिस O X, उसमें पॉजिटिव y एक्सिस O Y आना चाहिए, और उसमें पॉजिटिव z एक्सिस O Z आना चाहिए. सो प्लस प्लस प्लस. सेकंड ऑक्टेट में माइनस प्लस प्लस, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव. x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया तो ऑक्टेट का नाम, उसमें नेगेटिव x एक्सिस O X डैश, पॉजिटिव y एक्सिस y O Y आना चाहिए, और पॉजिटिव z एक्सिस Z आना चाहिए. सो O X डैश y O X dash y z. Third octet is minus minus plus minus minus plus. Fourth octet is plus minus plus plus minus plus. तो इसका नाम आप क्या देखेंगे, माइनस है इसमें O X dash माइनस है इसमें y dash, और प्लस है इसमें z. प्लस प्लस माइनस प्लस, तो इस ऑक्टेट का नाम क्या आएगा, O X y dash O X y dash z. अब ये चार ऑक्टेट हो गए, अब ये चार ऑक्टेट हो गए. इन चार ऑक्टेट के बारे में मैंने आपको दिखाया. अब बाकी के चार ऑक्टेट हैं वो भी हम लिख देते हैं. बाकी के चार ऑक्टेट, बाकी के चार ऑक्टेट के बारे में हम लिख देते हैं. X coordinate, y coordinate, z coordinate और name of the octet. So मैं क्या लिखूंगा, the fifth octet, sixth octet, seventh octet और eighth octet. Okay, so fifth octet, sixth, seventh और eighth, उसमें आपको साइन लिखना है. You have to remember this way only the octets. This way only you have to remember. This way only you have to remember. Fourth octet तक हमने कर दिया था. Fifth octet में x coordinate is positive, y coordinate is negative, z coordinate is negative. फिर sixth octet में minus plus minus minus plus minus. Seventh octet में minus minus minus, और eighth octet में plus minus minus. ये नाम है. इधर आप नाम क्या लिखोगे, O X y dash z dash. फिर इधर क्या आएगा, O X dash y z dash. यहाँ पे क्या नाम आएगा, O X dash y dash z dash. और eight ऑक्टेट का नाम क्या आएगा, O X y dash z dash. Let me check. First ऑक्टेट में प्लस 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 प्लस. सेकंड ऑक्टेट में नेगेटिव प्लस प्लस नेगेटिव प्लस प्लस. थर्ड ऑक्टेट में माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. ये फोर्थ ऑक्टेट में प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस. फिफ्थ ऑक्टेट इज plus plus minus plus. Fifth octet is plus plus minus, sorry, plus plus minus. Sixth octet is minus plus minus minus plus minus. Seventh octet is minus 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 minus. Eighth octet is plus minus minus plus minus minus. Let me just confirm. First octet plus plus plus. Second minus plus. First is plus 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 plus. Second is minus plus plus minus plus plus. Third minus minus plus minus minus plus. Fourth plus minus plus minus plus. Fifth plus plus minus plus plus minus. Sixth minus plus minus minus plus minus. Seven minus 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 minus. Eight में plus minus minus. सही है. इसका नाम O X Y Z O X dash Y Z O X dash Y dash Z O X dash Y dash Z. इसका नाम है O X Y dash Z. और इधर नाम होना चाहिए आएगा O X, गलती हुई थी, O X Y Z dash. सही है. O X dash Y O X dash Y Z dash. और लास्ट में आएगा तीनों नेगेटिव O X dash Y dash Z dash. एंड इज आल्सो करेक्ट. O X dash Y dash Z dash. लास्ट में आएगा O X Y dash Z
साइड, फिर फिफ्थ में प्लस प्लस माइनस कोट एक्स वाई जेड डैश माइनस प्लस माइनस ओवर एक्स डैश वाई जेड डैश माइनस परफेक्ट. Yes. So that finishes. You can say the polar theory, okay, 3D or R3 is divided into 8 equal parts by 3 perpendicular lines, by 3 perpendicular lines starting coordinate x and 3 mutually perpendicular planes or Cartesian planes in 8 octants. 8 equal parts, each part is called an octant. और वो हर एक रूम होगा, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी और हर एक x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट का साइन मेरा वो मैंने आपको समझा दिया. That's for today. I will continue with the next theory in the next video lecture. So अच्छे तरीके से रिवाइज करना, कुछ इतना टफ नहीं है, इजीली आराम से खत्म कर सकते हैं. It's a very simple and short chapter. Thank you.